the wave which is passing out. Now just see the reflection of the wave as well. कुछ चीज जरा ध्यान से देखो. जब फर्स्ट वेव पास आउट किया गया, look at the propagation of that particular wave. Just observe the wave. As we have seen a mathematical expression to represent the displacement of a wave in the y direction. If you can observe it, you can calculate that. If I want to calculate the displacement in the y direction at the mean position after a particular time t, how we used to represent it. Okay, so yeah, I'm stopping the video. I'll use it further for the reflection of wave as well. Let's start mathematical expression. A mathematical representation of a wave. As I said in yesterday's lecture, that we'll take some reference point for understanding the wave. That how does this wave get transferred from one point to another point? We know that each and every particle in a progressive wave, that is in a traveling wave, forms SHM. It performs SHM at its mean position. Okay. And collectively, what we observe is a resultant of SHM. So if all the particles are performing SHM, the resultant will be an SHM. So this is the transfer of a wave. As I said, if I want to calculate the displacement in the y direction, this is y-axis, this is x-axis. If I want to calculate the displacement in the y direction, there is a path difference. Path difference is represented by x. There is a path difference between these 2 points, which is represented by x. Okay, so I represented the wave propagation in the y direction. As I said, it depends upon 2 things, x comma t. It is function of x as well as t. At what time you are observing this particular point x, that matters a lot. Okay, so y of x comma t we represented as a sine of kx, that is final displacement, minus omega t. Minus क्यों किया था? Because the wave is moving in this direction. We know final minus initial, minus omega t. That is at what time you are observing. Okay, so kx minus omega t. अगर already आपका particular particle के पास एक angle exist करता है, तो you will introduce that extra angle over here, that is plus alpha. So this is the way of representing a wave. Okay. Similarly, if the wave is moving in opposite direction, ma'am, extra angle means, yeah, extra angle का मतलब extra angle मैं already समझा चुकी हूँ कि अगर at t is equals to 0 आप जिस पार्टिकल के रेफरेंस में बात कर रहे हो, अगर उस पार्टिकल के रेफरेंस में आपका जो पार्टिकल है वो at t is equals to 0 पे मीन पोजीशन पे नहीं है, if it is not at the mean position, if it already have some angle, अगर मैं एक सर्कल रिप्रेजेंट करके इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं, दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट, करेक्ट. अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो पार्टिकल मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो पार्टिकल जिस पार्टिकल के रेफरेंस में पूरा वेव, क्योंकि पहला जो वाइब्रेशन होगा वो इसी के पास जाएगा, वही तो हम देख रहे हैं. ये जो हम एग्जैक्टली ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो y की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव. अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अगर मेरा पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, लेट अस कंसीडर, मैंने बोला कि मेरा पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0 पे मीन पे नहीं है, इट इज नॉट एट द मीन पोजीशन, थोड़ा सा ऊपर है. तो अगर मेरा पार्टिकल पहले से ही थोड़ा सा ऊपर है और मैं उसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करूं, तो मुझे ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि एट t इज इक्वल्स टू 0 पे माय पार्टिकल इज नॉट एट 0, इट इज एट पर्टिकुलर एंगल अल्फा. मतलब अगर ऑलरेडी एक फेज कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे पीछे जब हमने एसएचएम पढ़ा था, वहां पे फेज कांस्टेंट को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था, वही फेज कांस्टेंट को हम यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वो एट t इज इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन पे नहीं है, वो एक
पर्टिकुलर एंगल अल्फा पे है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this particular alpha is representing that already some angle is existing. Okay, so your wave is represented by y of x comma t a sin of kx minus omega t. अगर उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है तो y of x comma t is represented as a sin of kx minus of minus. आपको पता है जब आप अपोजिट डायरेक्शन में लेते हो यू से इट इज x2 minus of minus x1. ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. So it becomes kx plus omega t plus alpha. This alpha, this k is known as propagation constant. इसको propagation constant भी बोला जाता है. और it is also known as wave number. This k is represented by 2 pi by lambda. This x is the path difference. कौन से दो पॉइंट्स के बीच में दिख रहे हो? This x is the path difference. अगर इसके और इसके बीच में देखते हैं तो x is this. इसके और इस पॉइंट के बीच में देखते हैं तो x is this. So x is the path difference between those 2 points. There are two things, phase difference and path difference. आपके पास दो चीजें होती है, phase difference और path difference. Phase difference का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस. path difference का मतलब होता है पाथ का डिफरेंस. ओके, ये जो आप निकालोगे थीटा माइनस थीटा, दिस इज अ फेज डिफरेंस. एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है. अगर एक पार्टिकल मीन से शुरू कर रहा है, एक पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2. सो फेज डिफरेंस का मतलब है एंगल का डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का मतलब है डिस्टेंस का डिफरेंस. सो your x is the path difference. ओमेगा आपको पता है क्या है? इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम एंड अल्फा इज दैट एक्स्ट्रा एंगल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली. अगर वो बोल रहा है कि आपका पार्टिकल इनिशियली मीन से ही शुरू कर रहा है तो अल्फा 0 हो जाएगा, सेम आपके पीछे जैसा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस कि k का 2 पाई बाय लैम्डा कैसे आया. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन यस्टरडेज लेक्चर, सो आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दैट. सो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट द मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट लुक्स लाइक एन SHM. इट लुक्स लाइक द इक्वेशन ऑफ एन SHM because it is resultant of an SHM. Every particle is performing an SHM. So this whole resultant wave is a resultant of your SHM of all the particles. Hence, the equation which is representing this particular wave is also looking like an SHM because it is a resultant of an SHM. Okay, so this was all about the mathematical expression of your wave. Let's discuss about the reflection of a wave now. Now, the new topic that we are going to start is reflection of a wave. Now, reflection itself explains you that after striking to the particle, whatever may be the part is reversing in its own medium. For example, आपको पता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कि जब कोई चीज किसी मीडियम को स्ट्राइक करके रिटर्न बैक जाती है अपने उसी मीडियम में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. सो वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. फर्स्ट इज द ट्रांसवर्स वेव इन अ मैकेनिकल वेव and the second one is your longitudinal wave. Okay, now if I discuss about the reflection of a transverse wave, what happens? जरा ध्यान से देखते हैं. Reflection of a transverse wave. For example, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, what is the experiment? ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो आपके स्ट्रिंग पे जनरेट होता है. ओके, जब आप एक स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हो एंड फर्स्ट कंडीशन आई एम टेकिंग कि
your wave is moving from rarer medium to denser medium. It is moving from rarer medium to denser medium. आपको पता है what is rarer and what is denser? Rarer medium में particles easily move हो पाते हैं. Denser medium में वो बहुत dense होते हैं, इस वजह से particle easily move नहीं हो पाते. Okay. Now let's take an experiment. उसमें मैंने क्या किया है, वेव को, एक स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स किया है. दिस इज अ वॉल, दिस इज माय डेंसर मीडियम, दिस एयर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज अ रेयर मीडियम. सो दिस इज ए, दिस इज बी. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट किया. जैसे ही मैंने एक वेव जनरेट किया, लेट अस कंसीडर मैंने सिर्फ एक वेव जनरेट किया जो पास होने वाला है. सो दिस इज अ क्रस्ट. यू नो आपके ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ जनरेट होता है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट कि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ जनरेट होता है एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन. करेक्ट. सो जब आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक वेव जनरेट करते हो और ये जो वेव है ये इसके पास जाती है और इससे स्ट्राइक हो रही है, दिस वेव इज गोइंग एंड स्ट्राइकिंग टू द वॉल. ओके. When compression goes and strike to the wall, exactly होता क्या है, all the particles are pushed up. जब मैंने वेव जनरेट किया सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ पुश हुए. जब ये पुश हुए पार्टिकल जाकर इसको स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इस डेंसर मीडियम, इस वॉल के पार्टिकल्स को भी ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं. बट सिंस इट इज अ डेंसर मीडियम, एक रिजिड वॉल है, ये एक रिजिड वॉल है, इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है ये इसको स्ट्रेच नहीं कर पाते, इनके अंदर वेव जनरेट नहीं कर पाते. सो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब ये पार्टिकल इनको पीछे की तरफ धक्का दे देता है. एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से जब क्रस्ट जाकर आपके इसको टकराता है, इट बिकम्स ट्रफ एंड रिटर्न बैक्स. मींस देयर इज अ चेंज ऑफ फेज एंगल दैट इज पाई. जब आपका क्रस्ट जाकर वॉल को टकराता है वो वॉल को भी ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है, बट सिंस इट इज अ डेंसर मीडियम सो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने स्पीड से वो ऊपर की तरफ ढकेल रहा है उतने ही स्पीड से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो स्ट्रिंग को ढकेलता है इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड यू गेट, जब योर क्रस्ट स्ट्राइक्स टू द वॉल it returns as a trough. Similarly, अगर आपने ट्रफ जनरेट किया और वो ट्रफ जाके वॉल को नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, so it will get equal and opposite reaction. तो आपका जो ट्रफ है वो क्रस्ट बन के रिटर्न बैक आएगा. So whenever your transverse wave moves from rarer medium to denser medium, जो क्रस्ट होता है वो ट्रफ बन के रिटर्न बैक आता है और जो ट्रफ होता है वो क्रस्ट बन के रिटर्न बैक आता है. एंड देयर इज एन फेज एंगल, देयर इज एन फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन द टू वेव्स. दैट इज, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वेव. इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो कितने का क्रिएट होता है, पाई का क्रिएट होता है. पूरा 180 डिग्री से टर्न हो गया है वेव. ये आपका ऊपर का प्रोटेक्टर है, ये आपका नीचे का प्रोटेक्टर है. पूरा 180 डिग्री से आपका वेव का जो एंगल है वो चेंज हो जाता है. क्लियर विद द पार्ट? सो दिस इज, बट आपने सिर्फ क्रस्ट ही क्यों लिए है? ट्रफ ले लो. या ट्रफ ही क्यों लिया है? ओनली वो पर्टिकुलर क्यों लिया? कोई भी, मैंने एक एग्जांपल लिया है. जब आप वेव जनरेट करोगे तो एक क्रस्ट या एक ट्रफ थोड़ी क्रिएट होगा. वही, अगर एक पूरा वेव वेव भी कर सकते ना? कर सकते हो. जब क्रस्ट टकराएगा तो ट्रफ बन के रिटर्न आएगा, जब ट्रफ टकराएगा तो क्रस्ट बन के रिटर्न आएगा. अल्टरनेटिवली ये चीज होने वाली है. मैम अगर पहला क्रस्ट एंड ट्रफ गया एक साथ एक वेव के पास तो फिर आते वक्त ट्रफ एंड क्रस्ट करके आएगा ना? एग्जैक्टली. तो जो आपका क्रस्ट होगा वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ट्रफ होगा वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट्स हैव अ लुक फॉर दिस एज वेल. आई हैव एन वीडियो फॉर दिस, यू कैन ऑब्जर्व दैट. Wait for a while.
जरा एक एक्सपेरिमेंट से इसको भी ऑब्जर्व करके देखते हैं। जब आपके वॉल को टकराएगा इट विल बी रिटर्न्ड एज अ ट्रफ, एंड ट्रफ जब वॉल से टकराएगा इट विल बी रिटर्न्ड एज अ क्रस्ट। जस्ट ऑब्जर्व द वीडियो। वेव पास आउट हुआ, कैन यू ऑब्जर्व द थिंग्स कि जब उसने एक सिंगल वेव को आपके वॉल से स्ट्राइक किया, व्हाट यू ऑब्जर्व? You Crust observe and trough. crust returned as a trough. Interesting. Okay, let's have another look. Now, wait for this. Stop here. Okay, let's have one more look. Then I'll discuss about the amplitude. Can you observe जब दो SHM एक दूसरे को टकराए, there was a maximum amplitude at between. Okay, so this is all about superposition of wave कि दो SHM एक दूसरे के ऊपर कैसे सुपर इम्पोज होता है। जब आप दो डायरेक्शन से दो वेव्स को एक दूसरे को टकराते हो, और अगर वो दोनों वेव्स एक ही फेज में है, एक ही फेज में, अगर आपको याद हो एक ही फेज में मतलब क्या है कि दोनों के दोनों वेव्स एक क्रस्ट एग्जैक्टली, आइदर क्रस्ट या ट्रफ जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तो यू गेट अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एज यू कैन सी इन द वीडियो। सो ये वीडियो से आपको दो चीजें पता चली है। फर्स्ट वी गॉट अ प्रूफ दैट कि जब क्रस्ट आपके डेंसर मीडियम को स्ट्राइक करता है, जब क्रस्ट आपके डेंसर मीडियम को स्ट्राइक करता है इट रिटर्न्स एज अ ट्रफ, एंड जब ट्रफ आपके डेंसर मीडियम जब क्रस्ट सेंड कर रहा है तो इट इज रिटर्निंग एज अ ट्रफ। लेट्स स्टॉप हियर। सो दिस इज द पार्ट। अब यहां पर जरा देखो कि अगर तुम, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड पार्ट, रेयर टू डेंसर। होप आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी वेव जो है रेयर से डेंसर पास होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो आपका क्रस्ट है वो ट्रफ पे बन जाता है और जो ट्रफ है वो क्रस्ट बन जाता है। मींस देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अब अगर इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो जहां पर आपका वीडियो रुका हुआ है, पहला जो स्ट्रिंग है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग मोटा है और जो दूसरा स्ट्रिंग है थोड़ा सा पतला है। अब मैं आपको ऑब्जर्व करवा रही हूं कि जब डेंसर से रेयर, क्योंकि जो स्ट्रिंग मोटा है दैट इज योर डेंसर मीडियम, जो स्ट्रिंग पतला है दैट इज योर रेयर मीडियम। ओके, जब स्ट्रिंग डेंसर से रेयर जाती है, अब सिंपल सा फंडा है, रेयर मीडियम है मतलब चीजें इजीली मूव हो सकती है, तो वहां पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जैसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपका क्रस्ट है वो रिटर्न बैक एज अ क्रस्ट आता है, जो आपका ट्रफ है वो रिटर्न बैक एज अ ट्रफ आता है। यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स। Can you observe the things? Hope you are clear. So let's start. Here we'll stop the video. Hope things are clear to you. So as I said, we were talking about a reflection of a wave. I showed you from a video that when a wave travels from, when a transverse wave I'm talking about, जब आपका ट्रांसवर्स वेव का जब हमने रिफ्लेक्शन देखा, हमको कंक्लूजन क्या मिला कि जब वेव जो है इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जो क्रस्ट है इट रिटर्न्स बैक एज अ ट्रफ, और जो ट्रफ है इट रिटर्न्स बैक एज अ क्रस्ट। मींस देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, दैट इज पाई। ओके, वहीं पे जब हमने उल्टा देखा कि एक मोटा स्ट्रिंग था और एक पतला स्ट्रिंग था, मोटा स्ट्रिंग वाज योर डेंसर मीडियम, पतला स्ट्रिंग वाज योर रेयर मीडियम। सो व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो रेयर मीडियम का मतलब क्या, इट कैन इजीली मूव, जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का बात ही नहीं होता।
यहाँ पे ये कर क्या रहा था, क्रस्ट वॉल को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा था, क्रस्ट वॉल को ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहा था, बट वॉल तो मूव हो नहीं सकता, तो वॉल ने क्या कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट कर दिया। बट यहाँ पर इट इज अ रेयर मीडियम, अगर क्रस्ट जाएगा और रेयर मीडियम तो इजीली मूव हो सकता है। जब उसने उसको ऊपर की तरफ ढकेला और वो जब रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद अगेन यू गॉट अ क्रस्ट एज अ क्रस्ट, ओके, क्योंकि दिस पार्टिकल डज नॉट हैव दैट मच एनर्जी कि वो उसको ट्रफ बनाकर पीछे ढकेले, इट कैन इजीली मूव। सो यह क्रस्ट आपको वापस क्रस्ट जैसा ही दिखा, और जो ट्रफ था वो वापस आपको ट्रफ जैसा ही दिखा, मींस देयर वाज नो फेज डिफरेंस। द फेज डिफरेंस हियर इज 0, क्योंकि जो जैसा था वो वैसा ही दिखा, फेज डिफरेंस इज 0। इस एक्सपेरिमेंट को आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप अगर चाहो एक वॉल लो, एक रॉड लो और उसमें एक ऐसा मूवेबल, व्हाट वी कैन से, मूवेबल रिंग जैसा स्ट्रक्चर लगा दो, और उस रिंग को, जो रिंग इजीली मूव हो सकती है, उसको आप एक स्ट्रिंग लगाओ, लगाने के बाद यू जनरेट अ वेव, यू विल ऑब्जर्व कि अब तो ये जो रिंग है वो इजीली मूव हो सकती है, भले इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड बट इट कैन इजीली मूव। तो जैसे ही क्रस्ट इसके पास होगा, क्रस्ट इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, बट अब ये इजीली मूव हो सकती है तो ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यू विल ऑब्जर्व द क्रस्ट एज अ क्रस्ट। So these are the two ways in which you can observe that when it goes from denser medium to rarer medium, जब कोई वेव denser medium से rarer medium में जाती है, especially I am talking about the transverse wave. Okay, here we are talking about the transverse wave. This condition is for the transverse wave. मैंने longitudinal wave के बारे में discuss नहीं किया है. So in transverse wave, crust returns as a trough, trough returns as a crust. There is a phase difference of pi when it goes from rarer to denser, and when it goes from denser to rarer, क्रस्ट रिटर्न्स एज अ क्रस्ट एंड ट्रफ रिटर्न्स एज अ ट्रफ। बड़े इंसान का यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्लियर विद द पार्ट? सो लेट्स गो अहेड विद अनदर कंडीशन। मैम, जब दोनों साइड से हम लोग क्रस्ट या ट्रफ डेवलप करते हैं, आपने वो कंडीशन नहीं बताया। वो कंडीशन मैं नहीं बता रही हूँ अभी, वो कंडीशन आगे जाके पढ़ेंगे हम, वो कंडीशन हम स्टेशनरी वेव में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा अभी तक। लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट केस is all about longitudinal wave. वो कंडीशन इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था कि जब दो एसएचएम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, सुपर पोजिशन होता है जब उनका, तो अगर दोनों क्रस्ट है या ट्रफ है, क्रस्ट को मीट हो रहा है या ट्रफ को मीट हो रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड आपको मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। मुझे ये समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो दिखाया था। एग्जैक्टली मैं आपको स्टेशनरी वेव में, जब मैं आपको स्टेशनरी वेव पढ़ाऊंगी तब हम उस कंडीशन को और अच्छे से समझेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव नाउ लेट अस कंसीडर इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। फर्स्ट केस, जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव रेयर टू डेंसर पास होता है तो क्या होता है? आपको पता है कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज मेड अप ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन इज दोज रीजन जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ जैसा कुछ नहीं है, बट सिंस यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ क्रस्ट एंड ट्रफ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन द ऑल पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, और आपको पता है कि आप एसएचएम को वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीज हमने की है पीछे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन वेव के हेल्प से किया जा सकता है, बिकॉज हियर इन दिस पार्ट आल्सो इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, whether you're talking about transverse wave and in longitudinal wave also the particles are performing SHM, बट जस्ट इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन जो होता है, जो एसएचएम परफॉर्म हो रहा है, वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर में होता है, और यहाँ पर वही जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोपगेशन के पैरेलल में होता है। जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है एसएचएम भी उसी डायरेक्शन में परफॉर्म होता है। डिफरेंस बस यही है, वरना दोनों में एसएचएम परफॉर्मेंस होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसका वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, और इसका वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे को पैरेलल होता है। Otherwise, both particles are performing SHM only. So you can represent this wave also with the help of an SHM graph, and this wave also with the help of an SHM graph. Okay. Now longitudinal wave consists of compression and refraction. Compression is those regions जहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्राउडेड होते हैं। रेफ्रैक्शन वो रीजन होता है जहाँ पे
पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और ये अल्टरनेट होता है, एज यू नो, जैसे क्रस्ट एंड ट्रफ अल्टरनेट होता है वैसे कंप्रेशन रिफ्रैक्शन अल्टरनेट होता है. सो ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम. सो लेट अस से कि अगर compression, let's talk about compression or rarefaction, any of the part. Let us say rarefaction जाकर आपके वॉल को टकराया. Okay, now this is a denser medium. ये denser medium क्या करेगा? Again there is an equal and opposite reaction. So compression जैसे जाके आपके वॉल को टकराता है या rarefaction जैसे ही आपके वॉल को टकराता है जाकर, वो compression है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा नहीं है कि दे विल चेंज इट. वो सिंपली क्या करेगा? रेयरफ्रैक्शन को रेयरफ्रैक्शन की तरह ही पीछे ढकेल देगा और कंप्रेशन को कंप्रेशन की तरह ही पीछे ढकेल देगा. मींस इफ यू आर इन अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, जब आपका कंप्रेशन जाकर वॉल को टकराता है, द इंसिडेंट वेव इज अ कंप्रेशन. तो जब वो रिटर्न बैक होगा तो यहाँ पर जब वो रिटर्न बैक होगा, अगेन इट विल बी रिटर्न्ड एज अ कंप्रेशन ओनली. एज अ कंप्रेशन ओनली वो रिटर्न बैक होगा. बिकॉज यहाँ पर ऐसा उल्टा करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने क्या कर दी है, वेव की वेलोसिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया. मतलब अगर आप वेव की वेलोसिटी को देखो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही थी? इस डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट वेव का किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में. अब उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. सो कंप्रेशन रिटर्न बैक एज अ कंप्रेशन ओनली. In longitudinal wave, when waves goes from rarer medium to denser medium, compression returns back as a compression only, and rarefaction return back as a rarefaction only. But दोनों का अगर तुम दोनों के डिस्प्लेसमेंट में देखो तो एक ऐसा डिस्प्लेस हो रहा है और एक ऐसा मुड़ के पीछे जा रहा है. मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. सो जरा अब ध्यान से कंपैरिजन देखो. व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव, क्रस्ट रिटर्न एज अ ट्रफ रिटर्न्ड एज अ क्रस्ट व्हेन यू टॉक्ड अबाउट rarer to denser medium, and there was a phase difference of pi. But in longitudinal wave, compression returns back as a compression and rarefaction returns back as a rarefaction, but उनका डायरेक्शन अपोजिट हुआ है. सो अगेन देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. वहां पे ट्रफ क्रस्ट बन रहा था, बट यहाँ पे कंप्रेशन रेफ्रैक्शन नहीं बनेगा. कंप्रेशन के जैसे ही आता है. एग्जैक्टली धक्का मार देगा वो पीछे वॉल की से तरफ. टकरा रहा है, थोड़ा सा उसका एनर्जी लॉस होना चाहिए. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगा. देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. थोड़ा तो सी ओम रियल लाइफ में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग वो टू बात बी है आइडियल. मैम, थोड़ा होगा, बट एकदम डायरेक्ट थोड़ा, हम उसको कंप्रेशन ही नहीं बोल सकते ऐसा ना. नहीं है. एकदम ऐसा थोड़ा है. लॉस होगा, बहुत ज्यादा नहीं. अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो. आप एक बंद दरवाजे में आप कभी चिल्ला के देखो, यू विल एक्सपीरियंस एन इको. बंद अगर घर है, आप बंद दरवाजा चिल्लाने. हाँ, घर आपका बंद है पूरी तरीके से, देयर इज नथिंग इनसाइड. ओके, अब वॉल को आप जोर से चिल्लाओ, सो व्हाट विल हैपन? आपको वो एनर्जी रिटर्न बैक मिलेगी. यू विल फाइंड द एनर्जी रिटर्न बैक. ऑलमोस्ट द एनर्जी विल बी सेम, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है. वेट फॉर अ व्हाइल. ये इसकी प्रॉपर्टी है कि योर कंप्रेशन रिटर्न्स बैक एज अ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन रिटर्न्स बैक एज अ रेफ्रैक्शन. ये लॉन्जिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी है. दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड. इसीलिए सॉलिड मीडियम में जब आप कान लगाकर सुनते हो, अगर आपने किसी एक साउंड प्रोड्यूसिंग मटेरियल को आपने सॉलिड पे रखा और आपने अपना कान लगाया, आपको फटाफट एनर्जी पास होती है, क्योंकि जब वो टकराती है तो एज अ रिटर्न बैक और सेम एनर्जी लेके पीछे जाती है. सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वी आर टेकिंग फेज डिफरेंस एज पाई. Otherwise, compression returns back as a compression and refraction returns back as a refraction. Please ask who was there. कोई पूछ रहा था ना कुछ? हेलो. हाँ बोलो. हेलो मैम, अगर वो रूम में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहा तो? तब तो आपका ये मीडियम ही नहीं है ना, तब तो आप रेयर मीडियम में आ गए. अच्छा. तब तो आप इजीली, रेयर मीडियम का मतलब होता है इजीली पास आउट होने देना, तब तो आप रेयर में आ गए.
वहां पे आप ऑब्जर्व करने वाले, अभी नेक्स्ट वही बताने वाली थी कि व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आपका कंप्रेशन से एनर्जी लॉस हो जाएगा, इट विल बिकम रेयरफ्रैक्शन. ओके मैम. सो फर्स्ट कंडीशन वाज रेयर टू डेंसर, रिटर्न बैक हुआ एज अ कंप्रेशन ओनली, बट द फेज डिफरेंस विल बी ऑफ पाई बिकॉज पूरा डायरेक्शन रिटर्न बैक हुआ है, पूरा डायरेक्शन चेंज हुआ है. नाउ next case is for a longitudinal wave when it is going from denser to rarer. अब next case ले रहे हैं for longitudinal wave when it is going from denser to rarer. This is the reflection of a wave for for longitudinal wave going from denser to rarer. अब अगर कोई एक ऐसा मीडियम है जो रेयर है, जो इजीली पार्टिकल आपकी एनर्जी को पास आउट होने दे रहा है, ओके, सो व्हेन यू विल पास अ कंप्रेशन, जब आप बहुत ज्यादा कंप्रेशन को पास करोगे होगा क्या, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका विंड पाइप. जब आप जो आपका विंड पाइप होता है जिसमें आप, और समझो ये ओपन एरिया है, आपने यहाँ से वेव को पास आउट किया, अब ये ओपन एरिया है, समझो कंप्रेशन इज हाई प्रेशराइज्ड रीजन, तो ये कंप्रेशन एग्जैक्टली करेगा क्या, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर रीजन है, तो जैसे ये आएगा ये आजू बाजू के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं इनको धक्का मार के बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करोगे कि सिंस उसने धक्का मार के सारे एयर मॉलिक्यूल्स को साइड कर दिया है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो काफी दूर दूर बचेंगे. So you'll observe that the compression when a longitudinal wave goes from denser medium, high pressurized region to low pressurized region, होता क्या है, वो मॉलिक्यूल्स को धक्का मार देता है, साइड कर देता है और पास आउट हो जाता है, जिसकी वजह से while going from denser to rarer medium, your compression returns back or you observe it as a rarefaction. बट यहाँ पे डायरेक्शन का कोई चेंजेस नहीं है, तो फेज डिफरेंसेस 0. वैसे ही जब आप रेयरफ्रैक्शन को ध्यान से समझना, कंप्रेशन को तो आपको समझ गया होगा कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशराइज्ड रीजन है, ये ओपन एरिया है, रेयर मीडियम है, ये क्या करेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये धक्का मारेगा, सारे मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे और दिस एरिया जिसको हम कंप्रेशन बोल रहे थे वो एरिया रेयरफ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, वहीं पर जब रेयरफ्रैक्शन जाएगा, when it is a rarefaction, now these molecules are already very much far away from each other. ये क्या मॉलिक्यूल्स को धक्का मार के साइड करेंगे, they combine with each other. जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और जो मॉलिक्यूल्स पीछे से आए, in rarefaction pressure is low, very low. तो इनके पास इतना प्रेशर ही नहीं है कि आजू बाजू के एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का मारे, ये उन्हीं के साथ कंबाइन हो जाता है. So you will find कि एयर मॉलिक्यूल्स भी जब रेयरफ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गए तो वहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा दिखेंगे, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट रेयरफ्रैक्शन इज, इट सीम्स लाइक रेयरफ्रैक्शन लुक्स लाइक अ कंप्रेशन. दिस व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का चेंजेस नहीं हो रहा है, इसीलिए कंप्रेशन भले रेयरफ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है और रेयरफ्रैक्शन भले कंप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, बट द फेज डिफरेंस इज 0 क्योंकि कोई मॉलिक्यूल पीछे की तरफ नहीं आ रहा है. इनके पास, इन एयर मॉलिक्यूल के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उनको पीछे की तरफ ढकेल सके. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैम सब समझा, सिर्फ वो पाइप का बताओ ना एग्जैक्ट क्या हुआ क्या नहीं, कैसा बना मॉलिक्यूल्स. अगर आपने एक पाइप लिया ओम और आपने एक फूंक मारी, सो you have produced two parts, one is compression and the another is rarefaction. ये अपने आप बनता है. जब आपकी एनर्जी आगे पास हो जाती है तो पीछे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेयरफ्रैक्शन जैसा बिहेव करने लगते हैं. हाँ, करेक्ट है. तो जब कंप्रेशन यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, ये कंप्रेशन क्या करेगा, ये हाई प्रेशर क्या करेगा, सिंस ये ओपन एरिया है, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का मार के साइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है. तो जब आप इसको यहाँ पे ज्यादा क्यों है मैम, कंप्रेशन में प्रेशर क्यों ज्यादा होता है, वो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ये. हाँ नहीं वो मालूम है, लेकिन पाइप के स्टार्टिंग पे पूछ रहा हूँ मैं. हाँ तो वही एनर्जी तो आगे पास हो रही है ना. अच्छा, पहले यहाँ पे कंप्रेशन होगा, हाँ, यहाँ की एनर्जी आगे पास हो जाएगी तो ये रेयरफ्रैक्शन बन जाएगा. फिर ये आगे की एनर्जी, तो यहाँ पे भी रेयरफ्रैक्शन है, यहाँ पे भी रेयरफ्रैक्शन है, बीच में कंप्रेशन हो गया, फिर आगे पास होगा तो ये रेयरफ्रैक्शन बन जाएगा, आगे वाला कंप्रेशन बन जाएगा, फिर आगे एनर्जी पास होगी तो
ये कंप्रेशन बन जाएगा, पीछे वाला रेरफैक्शन बन जाएगा। बराबर। तो तो जब मतलब कंप्रेशन, रेरफैक्शन तो हाँ लिसन, जब कंप्रेशन यहाँ पे पास आउट होगा, अब ये कंप्रेशन का जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो ज्यादा है। ज्यादा है। अब ये ओपन एरिया है, ये बहुत, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है जहाँ पे आपने एनर्जी जनरेट की है। अब इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसके सामने, इस फ्लूइड के सामने जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने कभी अगर फ्लूइड बजाया होगा तो कभी उन होल्स के सामने हाथ रख के देखना, जैसे ही आप फूंक मारते हो आपको हवा हवा हाथ में लगती हुई आपको फील होगी। क्योंकि जो आप कंप्रेशन अंदर पास करते हो, जो एनर्जी आप पास करते हो, वो सामने के एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, धक्का मार देती है। हाँ धक्का मारती है, प्रेशर तो है। यहाँ पर जैसे ही वो धक्का मार देगी, अब जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपने भेजा क्या था, आपने भेजा कंप्रेशन कंप्रेशन, था, बट धक्का रेरफैक्शन मारने हो की वजह जाएगा। से वो रेरफैक्शन जैसा दिखने लग जाएगा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी यूज कर ली है। समझा। वहीं पे रेरफैक्शन जब रेरफैक्शन यहाँ पे आएगा, तो नहीं पुश कर रेरफैक्शन के पाएगा पास उतना। उतना प्रेशर है ही नहीं कि वो धक्का मारे, तो वो हाँ एयर मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। बराबर। समझा? तो आप जिस चीज को रेरफैक्शन बोल रहे थे, वहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा दिखेंगे, तो यू विल से कि वाओ, योर रेरफैक्शन हैज मैम बीन अगर कन्वर्टेड टू कंप्रेशन। कंबाइन हो जाएगा तो फिर वो रेरफैक्शन टू अपना कंप्रेशन हो जाएगा ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ हाँ कि हाँ हाँ कंप्रेशन रिटर्न्स, बराबर। कंप्रेशन यू ऑब्जर्व एज अ रेरफैक्शन, एंड रेरफैक्शन यू ऑब्जर्व एज अ कंप्रेशन। बट यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, बट जो आपका कंप्रेशन और रेरफैक्शन है वो सीधा सीधा ही पास हो रहा है, इसीलिए द हाँ फेज डिफरेंस इज जीरो। 0। होप यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट्स। यस मैम। तो प्लीज आस्क एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। मैं एक बार सामने रख रही हूँ, जो भी कांसेप्ट सिखाए हैं उनको जरा गो थ्रू करो, कुछ डाउट है तो पूछो। First one was transverse wave, reflection of a transverse wave. If you have any doubt, please ask. सारी चीजें क्लियर है। Why crust is returning as a trough? Why trough is returning as a crust? Why phase difference is pi? मैंने आपको वीडियो के हेल्प से दिखा भी दिया कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की कंडीशन की वजह से क्रस्ट ट्रफ बन जाता है, ट्रफ क्रस्ट बन जाता है यहाँ पे। वहीं पे अगर पार्टिकल, अगर मीडियम इजिली मूवेबल है, तो क्रस्ट का काम ही यही है कि सामने वाले को ऊपर ढकेलना, तो वो इजीली मूवेबल है तो वो क्रस्ट 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 ही दिखेगा, वो ट्रफ नहीं बनेगा, क्योंकि वो इजीली आगे के पार्टिकल को भी ऊपर ढकेल देगा। So you will observe crust as a crust only and trough as a trough only. There will be a no phase difference of, there will be no phase difference between the two waves which is being reflected. जो रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रहा है वो क्रस्ट जैसा ही दिखेगा और ट्रफ ट्रफ जैसा ही दिखेगा। Phase difference will be zero between incident wave and reflected wave. So this was all about the transverse wave का reflection. When we talk about the longitudinal wave का reflection, so you know कि in a longitudinal wave there is in compression and rarefaction. Compression is high pressurized region and rarefaction is a low pressurized region. Okay, so here when compression goes and strikes to the denser medium, first condition is going from rarer to denser medium. Again compression push करने की कोशिश करेगा, तो हाई प्रेशराइज्ड रीजन है, तो उसी वेलोसिटी से वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा. So your compression returns back as a compression and rarefaction returns back as a rarefaction, and you get a phase difference of pi because पूरी velocity में changes आ रहा है. पहले वाले में जब rarer to denser गया it was crust and trough, trough and crust, but यहाँ पर ऐसा नहीं है. Compression returns as a compression and rarefaction returns as a rarefaction. भले phase difference pi का हो. phase difference pi का इसलिए हो रहा है क्योंकि velocity का direction पूरी तरीके से change हो रहा है. So rarer to denser जाते वक्त आपका phase difference pi का changes तो आता ही है, but transverse में crust trough, trough crust हो जाता है, और longitudinal में compression का compression ही रह जाता है, rarefaction का rarefaction ही रह जाता है. While going from, next condition is while going from denser to rarer. इसके लिए मैंने आपको fluid का example लिया कि आपका कंप्रेशन रेरफैक्शन जैसा दिखता है, रेरफैक्शन कंप्रेशन जैसा दिखता है, बट कोई चीज रिटर्न बैक नहीं हो रही है. ओके, तो आपको जो रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पे दिखेगी, जो वेव आप यहाँ पे सोचोगे, जो आप रिफ्लेक्ट करोगे यहाँ पे वेव, आपको वो वेव रेरफैक्शन जैसी दिखेगी, बिकॉज कंप्रेशन की वजह से जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो धक्का मार के साइड हो गए. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल फाइंड इज द अमाउंट विल बी लेस. So compression will return back as a rarefaction, reflected back as a rarefaction, and rarefaction will seem to be reflected back as a compression, and phase difference becomes zero because कोई velocity के direction का changes नहीं हो रहा है.
होप यू आर क्लियर। फ्लूइड के एग्जांपल में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हेलो मैम, हाँ मैम एक बार रिपीट करो ना फ्लूइड का क्या? एग्जांपल। फ्लूइड का एग्जांपल। सी, होता क्या है जब आपने यहाँ से फूंक मारी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जब आपने यहाँ से फूंक मारी, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर, सो दिस बिकम्स अ डेंसर मीडियम एंड बाहर का एयर मॉलिक्यूल्स बिकम्स अ रेयर मीडियम। सो व्हेन अ कंप्रेशन कम्स हियर, जब कंप्रेशन इस ओपन एरिया के यहाँ पे आता है, कंप्रेशन इज अ हाई प्रेशराइज्ड रीजन। वो क्या करेगा, इसके सामने के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है उनको धक्का मार के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दिस इज अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मींस इजीली मूवेबल, धक्का मार के बाहर निकल जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पर देखोगे, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था यहाँ पे, यू एक्सपेक्टेड हियर टू बी कंप्रेशन, पर जब आप यहाँ पे देखोगे आपको रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, आपको रिफ्लेक्शन में यहाँ पे क्या मिलेगा, बिकॉज इट हैव यूज्ड इज एनर्जी टू पुश ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको जहां पर कंप्रेशन था वहां पे आपको क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, रेयर फ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर समझो ऑलरेडी अब कंप्रेशन पास हो गया, नेक्स्ट जो आने वाला है वो रेयर फ्रैक्शन है। ऑलरेडी इसकी एनर्जी कम है, करेक्ट है, इसके पास रेयर फ्रैक्शन का प्रेशर बहुत कम होता है, इट इज लो प्रेशराइज्ड रीजन। तो ऑलरेडी प्रेशर लो है, तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को तो वो धक्का मार नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे। तो आप ये देखोगे कि रेयर फ्रैक्शन जो था पहले वो कैसा दिख रहा है, कंप्रेशन जैसा दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पर कोई चीज रिटर्न बैक नहीं हो रही है, इसीलिए फेज डिफरेंस इज जीरो। थैंक यू मैम। या सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। प्लीज कीप दिस इन माइंड, अपने दिमाग में रखना है कि डेंसर से रेयर जाते समय फेज डिफरेंस हमेशा 0 होता है, रेयर से डेंसर जाते समय हमेशा फेज डिफरेंस 5 में चेंजेस होता है। ओके, बट ये बात भी दिमाग में सेट करना है कि क्रस्ट ट्रफ के साथ क्या होता है व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और डेंसर टू रेयर जा रहा है तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में क्या चेंजेस आता है। होप यू आर क्लियर विद द थिंग्स, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर reflection of a transverse wave. Let's go ahead with a new topic, that is superposition of waves. Superposition of waves. सुपरपोजिशन के बारे में ऑलरेडी आपने एक जगह पे पढ़ लिया था, कहाँ पे पढ़ा है, जस्ट पीछे आपके एसएचएम में, वहां पे भी तो हमने वही किया था, दो एसएचएम को एक दूसरे को एक स्प्रिंग के ऊपर 2 बार एसएचएम जनरेट किया और वो दोनों एसएचएम को हमने कंबाइन किया, सुपर इम्पोज किया, एक दूसरे के ऊपर किया, उसके हेल्प से हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, रिजल्टेंट थीटा निकाला कि जो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, थीटा क्या होगा। सेम पार्ट है यहाँ पे, सेम चीज है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत हो सकता है कि उन्होंने वापस लिखते समय कुछ जो नोटेशंस उन्होंने यूज किए हैं वो अलग हो गए, बट मीनिंग ओवरऑल सेम है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स, बहुत सारी वेव्स जब आती है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, व्हेन इट ओवरलैप्स, अगर 2 वेव्स आ रही है, दिस आर द 2 वेव्स व्हिच आर कमिंग, ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर इंपोज होंगी, एक वेव यहाँ से आई, एक वेव यहाँ से आई, या दोनों सेम डायरेक्शन से भी आ सकती है, तो एक रिजल्टेंट जनरेट होता है, दैट विल बी द बिगर वन, दिस इज द रिजल्टेंट वन। ओके, सो ऐसा होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक दूसरे से टकराती हैं एक किसी पॉइंट पे, तो वो खुद का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है, दे क्रिएट देयर ओन डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे बिहेव करेंगी कि इस वेव को ऐसा लगेगा कि ये वेव प्रेजेंट ही नहीं है और इस वेव को ऐसा लगेगा कि ये वेव प्रेजेंट ही नहीं है। दिस इज व्हाट योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स, दैट व्हेन 2 or more waves traveling through a medium passes through a common point, each wave produces its own displacement at that point. दोनों वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगी at that particular point, and it will behave such that the other wave is not present there, and the resultant displacement, जो resultant displacement आएगा, it will be vector addition of the 2 waves. ये simply vector addition होगा दोनों waves का, that is y1 plus y2. ये वेव अपना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, ये वेव अपना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, और जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ द 2 वेव्स।
ओके सो इस वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है प्लस इस वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा आपके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. This is what your superposition principle explains. As we have already seen that your simple harmonic motion follows superposition principle. आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है. मैम मतलब Okay, दो okay. कंप्रेशन आएगा साथ में तो एक बड़ा कंप्रेशन डेवलप हो एक जाएगा, बड़ा करेक्ट? कंप्रेशन बनेगा. लेकिन Exactly. आपने बोला कि अगर ये इसको मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो वाला वेव है, हाँ वो वाला नहीं है, कंसेप्ट. ये इसके में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, ये इसके में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा. एक टाइम के बाद ऐसा होगा, ये क्रिएट हो गया, ये वाला वेव जो इस डायरेक्शन में जा रहा था वो निकल के इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये वाला वेव जो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो चुपचाप से इस डायरेक्शन में चला जाएगा. अच्छा, डिस्टर्बेंस एक दूसरे को नहीं होता, ये अपना काम करता है, ये अपना, फिर बाद में एक हाँ बड़ा ये अपना काम करता है. जनरेट हो जाता है. एग्जैक्टली. लेट्स ऑब्जर्व इट फ्रॉम द वीडियो अगेन. ध्यान देते, चलो देखते हैं. we'll observe that. Observe it. Can you see the part? जैसे ही वो एक दूसरे को स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक होने के बाद वो अपने अपने तरीके में अपने अपने डायरेक्शन में मूव आउट हो गए. मींस दिस इज व्हाट हैपेंस विद द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. जब दो वेव्स आकर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, किसी एक पॉइंट पे आकर मीट होता है, वहां पर इट क्रिएट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने के बाद वापस अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं. दे डोंट डिस्टर्ब ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते. हाँ, जिस पॉइंट पे वो मीट हुए हैं उस पॉइंट पे आपको रिजल्टेंट देखने के लिए मिलता है, एंड दैट रिजल्टेंट इज एडिशन ऑफ दिस टू, दैट इज y1 प्लस y2. y1 का और y2 का दोनों का एडिशन हो जाएगा, एंड यू विल ऑब्जर्व समथिंग रिजल्टेंट. बट मैटर करता है कि दोनों का वेव का डिफरेंस कैसा है. अगर आपका क्रस्ट एंड ट्रफ आकर मीट हुआ तो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. एक ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, एक नीचे की तरफ ढकेल रहा है, तो आपको वहां पे जो रिजल्टेंट मिलेगा इट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट टू, और वहां पे आपको एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो. ये चीज भी हमने देखी है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. This is what your superposition principle explains, that when two or more waves arrive at a particular point, what you observe is दोनों वेव ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे सच दैट पहले वाले वेव को दूसरे वाले वेव के प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे वाले वेव को पहले वाले वेव के प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Hope you are clear what is superposition principle. So when crust meets a crust or trough meets a trough, it creates a resultant amplitude. वहीं पे एक क्रस्ट आ रहा है और दूसरा ट्रफ आ रहा है, तो एक ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, दूसरा नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा इट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो एक A1 ऊपर की तरफ है, A2 नीचे की तरफ है, तो A1 माइनस A2 will give you 0. Clear? So this is what is about the superposition principle. एक बार ये हो गया, मीट हो गया, वापस फिर उसके बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये निकल के इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, निकल के इस डायरेक्शन में चला जाएगा. बट जिस पॉइंट पे ये मीट होंगे वहां पे हमको रिजल्टेंट देखने के लिए मिलेगा, एंड रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द टू. होप यू आर क्लियर. So this was about the superposition principle. Let's try to derive the resultant amplitude and resultant intensity of the two superposition of the two waves which are performing SHM. ये चीज हमने already की हुई है, but again we are starting with this. 6 minutes are there. We'll complete the part. Let's try to calculate the resultant amplitude. Okay, let's try to calculate it.
Now we are going to calculate a resultant amplitude or amplitude of a resultant wave. Amplitude of a resultant wave which is performing SHM, and due to superposition of these two waves, superposition of two waves, मतलब दो SHM wave performing waves है जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही है, सुपरपोजिशन हो रहा है उनका, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये डेरिवेशन ऑलरेडी हमने पीछे किया हुआ है, ऐसा ही कुछ, वहां पे हमने दो SHM को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करवाया था और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, वैसा ही सेम डेरिवेशन है, जस्ट यहाँ पे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग लिया है क्योंकि वहां पे हम पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो इसीलिए यहाँ पे वेव के रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे. सो लेट्स से that we are talking about the particle at x is equals to 0. हम x is equals to 0 का जो पार्टिकल है उस पे जो वेव जनरेट हुई है उसी पे सारा डिस्कशन कर रहे हैं. हमको पता है वेव का जनरल इक्वेशन इज गिवन बाय y of x comma t is equals to a sin of kx minus omega t. ये हमारा जनरल इक्वेशन है. तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा पार्टिकल, मैं उस पार्टिकल की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी एट जीरो पोजीशन पे है, at x is equals to 0. So your general equation becomes y of x comma t is equals to a sin of x 0 हो गया तो it simply becomes sin of. तो पहला वेव जो है it is y of x comma t a sin of omega t. Okay. दूसरा जो दूसरा वेव आ रहा है, let represent it as, पहले वेव का एम्पलीट्यूड इज a1, जो दूसरा वेव जिसको मैं सुपर इम्पोज करने वाली हूँ इस वेव के ऊपर, y of x comma t, मैं बोल रही हूँ उसका एम्पलीट्यूड अलग है, and that particle again I am talking about at x is equals to 0. So y of x comma t a2 sin of, मैं बोल रही हूँ कि let that wave का कुछ एक एंगल एग्जिस्ट करता है that is plus pi. Okay, already there is a certain phase constant in this wave. क्या अल्फा लिया था ना, चलेगा, यहाँ पे मैं phi से कंसिडर कर रही हूँ. Just keep it in mind, ये जो एक्स्ट्रा आएगा that is a phase constant. Okay, the real equation is kx minus omega t, but I am talking at x is equals to 0. मैंने वही वेव उठा लिया है जहां पर x is equals to 0 है, मतलब I am talking at the first position only. हाँ. Okay, मैं पहला वाला जो पार्टिकल है मैं उसी के बारे में डिस्कस करके वेव का डिस्क्रिप्शन ले रही हूँ, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट होगा वही सारे पार्टिकल्स को पास होने वाला है, वही वेव आगे के पार्टिकल्स को पास होने वाला है. तो किसी एक एक्स पे जाने से अच्छा है, मैंने क्या बोला कि मैं फर्स्ट पार्टिकल के ही वेव को कंसीडर करके पूरा ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ. सो आई एम टॉकिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. मैम ऐसा हो सकता है कि वो बोले एक्स इज इक्वल्स टू 5, हाँ हो सकता है. दे कैन से दैट एक्स इज एट 5. आई एम टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पार्टिकल और फिफ्थ पोजिशन पे वेव का बिहेवियर बताओ, तो ऐसा हो सकता है. तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्टिकल, जो वेव जिसमें फर्स्ट वेव क्रिएट हो रहा है और वही वेव आगे पास आउट होने वाला है, तो पहले का ही बिहेवियर लेके हम ओवरऑल इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं. सो फर्स्ट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय a1 sin of omega t. दूसरा वेव जो इसके ऊपर सुपर इम्पोज होने वाला है, जो उसके साथ जिसके साथ इसका सुपरपोजिशन होने वाला है, दैट इज गिवन बाय a2 sin of omega t plus phi. इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा वाला वेव है इसके पास ऑलरेडी एक फेज कांस्टेंट पाई है. ओके, हमने जब SHM का किया था, आई वांट यू टू रिवाइज दैट. मैंने आपको बोला भी था कि वो रिवाइज करके आना. हमने वहां पे देखा था कि वहां पे प्लस phi1 phi2 लिया था, मतलब दोनों को हमने एक फेज कांस्टेंट दे दिया था. यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि मेरा पहला वाला जो वेव है उसके पास कोई भी फेज कांस्टेंट नहीं है, और जो दूसरा वाला वेव है उसके पास कुछ phi फेज कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर मैं इसको y1 बोलती हूँ, इसको y2 बोलती हूँ, तो y क्या होगा? y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. सिंपली आप इसको ऐड करोगे, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. अगर आपको पीछे का आपने थोड़ा भी रिवाइज किया होगा तो चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी कि एग्जैक्टली अब आगे करना क्या है. यहाँ पे ओमेगा टी प्लस phi1 था, वहां पे ओमेगा टी प्लस phi2 था, तो उसको हमने बड़ा सा डेरिवेशन सॉल्व करके उसको cos थीटा और sin थीटा, cos डेल्टा और sin डेल्टा में रिप्रेजेंट कर दिया था. सेम चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं, एवरीथिंग इज सेम.
सिर्फ यहाँ पर मुझे कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया, मैंने मेरा सिचुएशन इजी कर लिया है कि माई फाई इज 0, माई फाई इज 0. ओके, आई एम गिविंग यू होमवर्क टू प्रोसीड आफ्टर दिस. मैं सिखाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसके आगे खुद से प्रोसीड करो. प्रोसीडेड आफ्टर दिस, और मुझे रिजल्टेंट वाई निकाल के दो कि यहाँ पे रिजल्टेंट वाई किस फॉर्म में आएगा. मैं ये डिस्कस करूंगी कल, बट मैं चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एसएचएम का ऐसा प्रूफ किया है और ऑलरेडी हमने सम्स में भी 2 बार इसको सॉल्व किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप सॉल्व करके इसका रिजल्टेंट वाई निकाल के दो कितना आएगा. उसके बाद रिजल्टेंट वाई निकालने के बाद आप इसका एम्पलीट्यूड, आपको पता है, याद होगा एम्पलीट्यूड कैसे निकाला. यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड को आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल सिंगल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. आपको पता है कि एम्पलीट्यूड हमने कैसे निकाला था, आर कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस आर साइन डेल्टा का स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करके हमने ए का एक रिजल्टेंट आंसर निकाला था. सो आई वांट यू टू प्रोसीड आफ्टर दिस डेरिवेशन. ट्राई करो खुद से. हालांकि आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस डेरिवेशन, बट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ एंड देन वी विल मीट टुमारो. आपका होमवर्क ये है फॉर टुमारो. आज मैंने आपका